اسلامی سال منانے کا ذہن تو بہت دنوں سے تھا، اس سے پہلے بھی پروگرام کیے ہوئے ہیں، مگر اس نوعیت کا پروگرام نہیں کیے۔ ہم چونکہ چاہ رہے کہ اسلام کا پھیلاؤ جو ہے نئی نسل اس سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ انگریزی سال بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے مسلمان بچے بھی شامل ہیں۔ یہ کہ ہم نے دین کو صحیح طرح سمجھانی ہے۔ اگر دین کی روح کو ہم سمجھ لیتے تو پھر ہم دین کی اس عروج پہ پہنچ جاتے جو اسلام کو مطلوب ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارا سماج بگڑ رہا ہے، سماج میں برائیاں پھیل رہی ہیں، لیکن ہم سماج کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مسلمانوں کا اپنا ایک کلچر ہے جو تواتر ہے، جو چلے آتا ہے سالوں سال، اور وہ دیکھ کے ہی سیکھنے کو ملتا ہے، وہ کہیں پڑھ کے نہیں ملتا ہے۔ اور چھوٹے بچوں جو ہوتے ہیں، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، وہ دین کو تواتر طور پہ جب دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ تو کلچرل پروگرام بھی ایک دین کا حصہ ہے، اور اس سے لوگوں کے اندر اویئرنیس آتی ہے، اور خاص طور پہ جو بچے ہیں ان کے اندر بڑی اثرات آتی ہیں کہ ان کو معلوم چلتا ہے کہ ان کے دین کے کیا تقاضے ہیں اور یہ کیا کیا کلچر ہم سے جڑے ہیں۔ جو پروگرام تھا بلگچیا مولانا محمد منیر فاؤنڈیشن کا، یہ جسے محمد عبداللہ صاحب جو بہت ہی اچھے نیک سماجی خدمتگار ہیں، ان کی پوری ٹیم اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہے کہ یہ اویرنیس کا پروگرام ہے۔ واقعی لوگوں کو نئی نسل جو گمراہ ہو رہی ہے اس کے اندر ایک بیداری پیدا ہو، اپنے کلچر اپنے ماحول سے ان کو واقفیت ہو۔ مولانا فاؤنڈیشن ماشاءاللہ ہمیشہ ہر پروگرام مناتا رہتا ہے، اور یہ چونکہ مہینہ جو ہم لوگ کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت تاریخی اس مہینے میں بہت تاریخی واقعات ہوئے ہم لوگ کے اسلامی حساب سے۔ اور چونکہ ابھی ہم نے کہا بھی ہے کہ ہم لوگ کا جو بھی مہینہ ہے، ہر مہینے میں ہم لوگ کا ایک عبادتی والا معاملہ ہے۔ جس طرح ہم لوگ کا ہر خوشی عبادت سے شروع ہوتا ہے، غم بھی عبادتی پہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت محمد عبداللہ صاحب نے مولانا محمد منیر فاؤنڈیشن کی جانب سے بلگچیا میں ایک نہایت ہی شاندار اسلامی سال نو پروگرام کا اہتمام کیا، جس میں کافی تعداد میں عمائدین شہر کے علاوہ سماج کی اہم شخصیتوں اور ائمہ کرام نے حصہ لیا، اور ان لوگوں نے اسلامی سال نو کی اہمیت اور اغراض و مقاصد بیان کیا، اور بتایا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور غیروں کی برائیوں کی طرف لے جانے والی ثقافت کی تقلید کر رہے ہیں۔ خاص طور پر حضرت خواجہ احمد حسین صاحب، حضرت پرویز خان صاحب، اور ان سے بھی بڑھ کر صدر جلسہ مولانا معین الدین صاحب نے اپنی مدلل، پرمغز، جامع اور بہترین باتوں اور مشوروں سے لوگوں کو نوازا۔ ان کی باتوں سے لگا کہ سچ مچ لوگ ان ہستیوں کی باتوں پر عمل کر لیں تو ان کی دین اور دنیا دونوں سنور جائے۔ اس معاملے میں اہل بلگچیا ویسے بہترین رہنمائی کر رہا ہے، کیونکہ جیسا کہ حضرت خواجہ احمد حسین صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے نماز عشاء کے دوران بلگچیا کی مسجد میں اتنی بھیڑ دیکھی کہ انہیں لگا کہ یا تو لوگ نماز جمعہ کے لیے آئے ہیں یا شب برات کا موقع ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کے وقت لوگ کی کتنی بھیڑ ہو رہی ہے۔ بلگچیا کے اس کایا پلٹ کے پیچھے بے شک مولانا محمد منیر فاؤنڈیشن اور امن کمیٹی کے لیے کام کرنے والی ہستیوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ مولانا محمد منیر فاؤنڈیشن کے روح رواں اور سیکریٹری حضرت جناب محمد عبداللہ صاحب اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، اور سماج میں تعلیمی بیداری اور اسلامی ثقافت کے فروغ کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، تاکہ مسلم سماج میں تعلیمی اور دینی دونوں بیداری آ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی سال نو کے سلسلے میں انہوں نے اتنے بڑے پروگرام کا اہتمام کیا۔ ویسے اس پروگرام کو کامیاب و کامران بنانے کی صحرا
उनके साथ साथ उनके साथियों के सर भी बंधता है। जिन लोगों ने पूरी जाफशानी के साथ इस काम में लगे रहे और जलसे साले 9 को कामयाब बनाया। जलसा में मुकर्रिरीन ने खुलकर अपनी बातें रखी, लेकिन जनता टीवी हिंदुस्तान को मुख्तसर तौर पर जो बातें रखी, आइए उसे हम सुनते हैं। देखिए, इस्लामी साल मनाने का जहन तो बहुत दिनों से था, इससे पहले भी प्रोग्राम किए हुए हैं, मगर इस नौइयत का प्रोग्राम नहीं किए। हम चूँकि चाह रहे कि इस्लाम का फैलाव जो है नई नस्ल इससे फ़ायदा उठाए, क्योंकि अंग्रेज़ी साल बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हम देख रहे हैं कि उसमें हमारे मुसलमान बच्चे भी शामिल रहते हैं। बंगाली कौम अपना बंगला बैसाख बहुत अच्छा से मनाती है, तो बहरहाल उसको मनाने का हक़ भी है तमाम जो लोग जिसको मानने वाले हैं। हम चूँकि इस्लाम के मानने वाले हैं और ये महीना बहुत तारीख़ी महीना है, बहुत से वाक़यात हुए हैं। करबला का वाक़या है, आदम अलैहिस्सलाम इसी महीना। ये हम सोचे कि मौलाना मुनीर फाउंडेशन की बैनर से कम अपने मिल्लत को, अपने कौम को, अपने आने वाली नस्ल को इस मुहर्रम के महीना के ताल्लुक़ से एक पैगाम हमारे आलिम उलमा दानिश्वर दे, इसी निस्बत से हमने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है। मौलाना मुनीर फाउंडेशन तकरीबन 15 सालों से ख़ासकर तालीम के मामला में बहुत काम कर रहा है। बिलगच्छा में बच्चों में मुबारक कापड़ी को मिलाएँ। आज सर सैयद अहमद खान की शक्ल में यहाँ पर बिलाल हसन भी आ रहे हैं, इंशाअल्लाह और काम कर रहे हैं। परवेज़ अहमद खान साहब भी जोड़ रहे हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने मस्जिद का काम कराया है, जहाँ 50-60 सालों से बिजली नहीं था, लाइन नहीं था, मिर्ज़ा बागान मस्जिद में, वहाँ पर 440 लाइन हम लोग लाए इंशाअल्लाह रहमान। आज मस्जिद में एयर कंडीशन में किया है। और हमारे कब्रिस्तान का भी हम लोग काम कराए हैं। सरबगला कब्रिस्तान का बहुत सारे मैनुअल को कंप्यूटराइज, हाई मास्क, ठंडा पानी, आपका जाके वजू खाना, और उसके बाद मदरसा तौहीद फुरकान जो है, इसमें भी बिलाल भाई कम से कम 2 लाख रुपया खर्चा करके उसके वजू खाना और बावर्ची खाना और पैखाना सब काम करवाएँ इंशाअल्लाह। परवेज़ खान भी बहुत बड़ा काम कराए, इस्लाम पापा, राजा भाईजान, तमाम लोग हमारे जुड़े हुए हैं। लड़की का शादी भी हम लोग करवाए हैं, तो इंशाअल्लाह आज लड़की वो बच्चे की माँ भी बन गई है माशाअल्लाह। तो एक मिशन है, हम लोग इंशाअल्लाह काम करना है। आगे क्या करना चाह रहे हैं, कुछ और भी कंसेप्ट? हाँ, बहुत कंसेप्ट है। हम चाह रहे हैं कि कौम और मिल्लत के लिए कोई अच्छा एक स्कूल लड़कियों के लिए इंशाअल्लाह बनाने की इरादा कर रहे हैं। बिलगच्छा में खसूसी एक जगह का भी सोच में रखे हैं। अल्लाह अगर उसको कबूल करेगा तो इंशाअल्लाह एक स्कूल में बिलगच्छा में इंशाअल्लाह हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं, लड़कियों को इसी नाम से, किसी भी नाम से हो, बस गवर्नमेंट से भी हम रब्ता करेंगे, हमारे अमन कमेटी के लोग उनसे भी रब्ता करें, मिल के इंशाअल्लाह काम करें। हाँ, एक स्कूल होना चाहिए इंशाअल्लाह, इसके लिए है। तो देखिए, मौलाना मुनीर फाउंडेशन माशाल्लाह हमेशा हर प्रोग्राम मनाता रहता है, और ये चूँकि महीना जो हम लोग का इस्लामी साल का पहला महीना भी होता है, और ये एक बहुत तारीख़ी, इस महीने में बहुत तारीख़ी वाक़यात हुए हम लोग के इस्लामी हिसाब से। और चूँकि अभी हमने कहा भी है कि हम लोग का जो भी महीना है, हर महीने में हम लोग का एक इबादती वाला मामला है। जिस तरह हम लोग का हर खुशी इबादत से शुरू होता है, गम भी इबादती पे ख़त्म होता है। तो ये महीने में भी हम लोग को रोज़ा रखने का तलक़ीन किया गया है, और ये महीना बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सब कुर्बानी और इस सब का हम लोग को एहसास होता है, सिखाया जाता है। इसलिए ये बहुत पाक महीना है, इसमें बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं और होने वाले भी हैं इंशाअल्लाह उसमें। आपको क्या लगता है कि लोगों को ये साल बनाना चाहिए, साले लोग बड़े पैमाने पर? हाँ, ये तो देखिए, जैसे यहाँ और अभी बड़े बड़े उलमा कराम यहाँ बैठे हुए हैं माशाल्लाह, बहुत मालूमाती बातें बताई और बताएंगे भी। और ये तमाम लोगों को, जो हम लोग ये नया जनरेशन जो हम लोग आ रहा है, उसको मालूम होना चाहिए कि ये मुहर्रम का महीना क्या है। मालूमात होगा तो इंशाल्लाह उसी हिसाब से इसमें इबादत भी करेगा, और जो अहकामात बताए गए हैं सब करेगा इंशाल्लाह। आपको लगता है कि मौलाना मुनीर फाउंडेशन जी हाँ, बहुत ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी हमारा मौलाना ये बोल के गए हैं, मौलाना फाउंडेशन बहुत, चाहे दीनी हो चाहे समाजी हो, बहुत काम में लगा हो माशाल्लाह। हम लोग सब इससे जुड़े हुए हैं, और हमारे जो सेक्रेटरी हैं हमारा अब्दुल्ला साहब बहुत फाल आदमी हैं, तो हम लोग को खुशी होती है, हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। और सभी तकरीबन सभी बिलगच्छा जुड़ा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है ये। बस ठीक। देखिए, एक होता है रिलीजन ख़ास, जिसमें ऐसी बातें होती हैं जो दीन से जुड़ी हुई होती हैं, और एक होता है कल्चर।
मुसलमानों का एक अपना एक कल्चर है जो तवातुर है, जो चले आता है सालों साल, और वो देख के ही सीखने को मिलता है, वो कहीं पढ़ के नहीं मिलता है। और छोटे बच्चों जो होते हैं, जो छोटे बच्चे जो होते हैं, वो दीन को तवातुर तौर पे जब देखते हैं वो सीखते हैं। तो कल्चरल प्रोग्राम भी एक दीन का हिस्सा है और इससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है, और ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं उनके अंदर बड़ी असरात आती हैं कि उनको मालूम चलता है कि इनके दीन के क्या तकाज़े हैं और ये क्या क्या कल्चर हमसे जुड़े हुए। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है अब्दुल्ला भाई की तरफ से, मौलाना मुनीर फाउंडेशन की तरफ से, जहाँ लोगों को जोड़ा गया और इस महीने के ताल्लुक़ से हमें बड़ी नई चीज़ें बात मालूम हुई, क्योंकि काफ़ी आलिम दीन जुड़े हुए हैं इसमें। बस मेरा यही कहना था। आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहना चाहिए ताकि लोगों में बेदारी आए? जी, बेदारी के लिए ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। कल्चरली ये मुसलमानों का कल्चर है और हमारा कल्चर ज़िंदा होना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ, कल्चर जो होता है, अगर आप उसको हद से ज़्यादा खींचे तो उसके अंदर बुराई आती है, लेकिन कल्चर को प्रिजर्व करते हैं जैसे होना चाहिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है, और कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए। अपने कल्चर को अगर आप प्रिजर्व करेंगे तो आपकी एक्चुअली जो वजूद है आप उस पर कायम रहेंगे। शुक्रिया जावेद भाई, जनता टीवी का। देखिए, ये आज का जो प्रोग्राम था बिलगछिया मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन का, ये जिसे मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो बहुत ही अच्छे नेक समाजी खिदमतगार हैं, उनकी पूरी टीम इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहक है कि ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है। वाकई लोगों को, नई नस्ल जो गुमराह हो रही है उसके अंदर एक बेदारी पैदा हो, अपने कल्चर, अपने माहौल से उसको वाकफियत हो, अपने दीन से उसको वाकफियत हो। जिस बात का जिक्र परवेज़ साहब ने किया, अवेयरनेस, वाकई। और अगर ये अवेयरनेस का सिलसिला अगर इस तरह शुरू रहा तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी नई नस्ल जो गुमराह हो रही है, अल्लाह चाहेगा तो हमारे आइम्मा कराम की वजह से, हमारे इस तरह जैसे यंग जनरेशन के लोग जो दीन के तरफ माइल हुए हैं, मैंने सोचा नहीं जा सकता इनकी तकरीर सुनने के बाद, द कंसेप्ट ऑफ इस्लाम, यही आज तक हम लोग नहीं समझ पाए कि इस्लाम का क्या कंसेप्ट। अगर उसको सही ढंग से अगर इसको पेश किया जाए, और हमारे हजरत मौलाना मोइनुद्दीन कासमी और यहाँ के मदरसे में जो कुछ तरबियत दी जा रही है, इस वक्त तरबियत का बहुत फुकदान है, और इसे आप लोग ये ज़रूर फैलाएं। और देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैगाम और दिया था जो हम लोग के ख़िलाफ़ एक बदगुमानी है कि हम लोग इस मुल्क के अच्छा के बारे में या भला नहीं सोचते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम यह है कि जिस मुल्क में पैदा होना, जिस मिट्टी में पैदा होना, उस मिट्टी से वफ़ादारी करना। और तारीख़ शाहिद है कि आज तक इस मिट्टी से हम लोग वफ़ादारी करते अपने नबी के कौल पर चले आ रहे हैं। आखिरी पैगाम मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि जो लोग गुमराही फैला रहे हैं इस्लाम के नाम पर, उनको मेरा सिर्फ ये पैगाम है कि शरीयत में तबीयत का दखल नहीं होना चाहिए। तबीयत, आप अपनी मर्ज़ी से आप दुनियावी काम करें, लेकिन शरीयत में तबीयत को अगर आप दाखिल कीजिएगा तो गोया आप इस्लाम को मजरू करने का काम और इस इमारत को जो है ढाने का काम आप करें। लिहाजा इससे तमाम लोगों को बचना चाहिए जो बदगुमानी पैदा करते हैं। देखिए, कमी इस बात की है कि हमने दीन को सही तरह समझा नहीं है। अगर दीन की रूह को हम समझ लेते तो फिर हम दीन की उस उरूज पर पहुंच जाते जो इस्लाम को मतलूब है। अफसोस ये है कि हमारा समाज बिगड़ रहा है, समाज में बुराइयां फैल रही है, लेकिन हम समाज को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। बदलना बहुत ज़रूरी है। बदलने के लिए आपको मिजाज बदलना होगा, दिलो दिमाग को बदलना होगा, और तमाम मिजाज को जो है कन्वर्ट करना होगा इस्लाम की इब्तिदाई दौर की तरफ। जब इस्लाम की इब्तिदाई दौर हम लौटेंगे तो इंशाअल्लाह फिर वही उरूज हमको हासिल होगा जो पहले थे। ये जो कमी है उसके लिए ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? इसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो दीन की जो शुद्ध रखते हैं मगर दीन की सही तबलीग नहीं कर पाते, दीन को सही तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं, जो वक्त का तकाज़ा है। और ख्वाजा साहब ने एक बात अपनी तकरीर में कही थी कि यहाँ की मस्जिदें जो है आबाद हैं और बच्चे भी 5 वक्त की नमाज में आते हैं, तो ये माहौल क्या पूरे बंगाल या पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो सकता? बिल्कुल होना चाहिए।
असल चीज़ जो हमारे खासा में कही है वो तरबियत होगी इंशाअल्लाह माहौल बनेगा, समाज बनेगा। तरबियत में जहाँ कमी आएगी माहौल बिगड़ेगा, समाज में। तरबियत जो होती है बच्चों से शुरू होती है, इसलिए तमाम बच्चों को जो है इस्लामी दीनी अखलाकी तरबियत देना बहुत ज़रूरी है ताकि समाज में इनकलाब है। यहाँ जो मसाजिद में भीड़ हो रही है, जी, क्या वजह है? कैसे आप लोगों को यहाँ तक लाए? उसकी वजह ये है कि हमारा समाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक हमारे काबू में है, कंट्रोल में है, और उसके लिए तरबियत के हम तरीक़े भी बनाते हैं। इख्तियार जैसे अमन कमेटी है, उसके ज़रिए से हमने बहुत सारे हालात को सुधारा है, संवारा है, बनाया है, कंट्रोल किया है। अल्लाह का फजल करो। सबसे पहले तो मौलाना मुनीर फाउंडेशन के तमाम अरकान को मुबारकबाद पेश करते हैं, नए साल का मुबारकबाद पेश करते हैं, ख़ुसूसन मोहम्मद अब्दुल्ला को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम बनाया जिससे कि इस्लामी मुआशरा में एक अमली तौर पर लोग आ सकें। ये काम तो हमेशा होना चाहिए, हर तबके को करना चाहिए, सिर्फ मौलवी मौलाना तक महदूद नहीं होना चाहिए। जिसको इस्लामी शऊर है उन लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारे कौम में इस्लामी जो हमारा मालूमात है उसकी कमी है, उसको बताना है हमको इस्लाम है क्या। तो हम समझ रहे हैं कि आज से इसकी शुरुआत हो जाए इंशाअल्लाह। अमली दुनिया में जब तक हम नहीं आएंगे इस्लाम का जो तशख़्ख़ुस है वो कम से कम हो जाएगा। हम मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को सराहना करते हैं, उनकी पूरी टीम को सराहना करते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। आज के दौर में ना जाने कितने अदारा कितने क्लब हैं हमारे माशरे में जो अभी 15 अगस्त का टूर्नामेंट का कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और तरह तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला साहब ने ये इस्लामी साल का नया जो शुरुआत किया है ये बहुत ही अच्छा कदम है। हम उनका जितना तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया। मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन की जानिब से बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और माशाअल्लाह हर एक प्रोग्राम बड़ा ही अच्छा होता है और वालिहाना अंदाज में होता है। इस प्रोग्राम से और इस फाउंडेशन से हर एक इदारे को, हर एक तंजीम को सबक लेनी चाहिए कि जिस तरह ये फाउंडेशन और मतलब कि ये इदारा, ये तंजीम वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे प्रोग्राम मतलब कि करती है और लोगों को जोड़ती है, और इदारों को भी चाहिए क्या है कि प्रोग्राम कराएं, उलमाए कराम को जोड़ें, उलमाए कराम से जुड़ें और लोगों को करीब करें। हुआ है ये सिर्फ बिलगचाई तक नहीं बल्कि पूरे कलकत्ता शहर और पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए ताकि जितने लोग हमारे इस्लामी तहजीब से, हमारे इस्लामी साल नौ से नावाकिफ़ है वो इससे वाकिफ़ हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ आज नए साल के मौके पे शामिल हुए हैं। आज यहाँ पे मौलाना मुनीर फाउंडेशन की तरफ से ये नए साल का एहतमाम किया गया है। हम यह बोलना चाहते हैं कि आज हम लोग क्या आज सब लोग हम जो कौम है मुस्लिम कौम नए साल को याद रखें और नए साल की शुरुआत अच्छे से करें, कुरान की तिलावत करके, नमाज़ पढ़ करके और अच्छी अच्छी बातें सीखें।